Okay. Let me take first question जो श्री हरि ने last time पूछा था about ovulation. So ovulation बच्चे it is the maturation of follicle, female gamete formation. तो जो female gamete proper बनता है जिसमें कि immature gamete mature होता है, that is the ovulation. तो ओव्यूलेशन क्या होगा कि जैसे ही ओवम फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद इसको ओवरी से बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब पे आना होता है. तो ओवरी से बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब पे आएगा ताकि फर्टिलाइज हो सके. तो ये पूरा प्रोसेस आपका ओव्यूलेशन कहलाता है. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके. So, okay, Srihari, आपका क्वेश्चन ओव्यूलेशन टाइम का है. So it is the same with the menstrual cycle. जो भी menstrual cycle का टाइम होता है, that is the time of ovulation. So it takes place somewhere around 12 to 15 days. उसके बाद जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रहता है. फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रह के इट वेट फॉर द स्पर्म. तो अगर स्पर्म नहीं आ रहा है देन ब्लीडिंग फेज होता है. दैट इज द मेन, वो एंड फेज हो जाएगा या फिर कह लो मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग फेज होता है. तो मेंस्ट्रुएशन को डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज द सिक्रेटरी फेज और ब्लीडिंग फेज, देन कम्स द प्रिपरेशन फेज, फिर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के बाद वेटिंग पीरियड रहता है और यू कैन से ल्यूटिनाइजिंग फेज. ल्यूटिनाइजिंग मतलब इंट्रायूटेराइन वॉल जो है वो थिक हो रहे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे शेड करने लगते हैं. तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में इतने फेजेस होते हैं. एंड जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग होता है शेडिंग शुरू हो जाती है, वापस से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. इट टेक्स समवेयर अराउंड 28 डेज. तो यानी अगर आज ओव्यूलेशन हो रहा है, यू कैन से कि आफ्टर 28 days or after 1 month exactly फिर से next ovulation होगा. That is your time period. Yeah, ma'am. Yes. Ma'am, like in some people after like 10, like after like very long period of months, like after 4 to 5 months, it is like menstruation is happening. So, ma'am, are they like very? What is that? Like, how are they like this abnormality is there? Yes, Kushi, can you repeat? I didn't get your whole question. Yeah, ma'am, like in some people, some women, it is like in like 4 to 5 months or maybe less than that. It is in that less than that time span it is coming menstruation. So, ma'am, like how, like is there any abnormality or like how If is it it is, it happening? completely depends on the type of, on the age. If it is, if the female is between 20 to 30, she is completely mature reproductively. अगर ऐसे टाइम पे हो रहा है, then yes, it is abnormal. बट अगर ये प्यूबर्टी में हो रहा है, देन नो, इट इज नॉट एबनॉर्मल बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस. और बॉडी अभी डेवलप हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, देन ऑफ कोर्स नो, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल टू गेट योर पीरियड आफ्टर 3 to 4 months. अगर ये प्यूबर्टी के बाद मेनोपॉज के टाइम पे मींस आफ्टर 40-45 ये वाले एज पे अगर एबनॉर्मल हो रहा है, यानी गैप आ रहा है इन द मेंस्ट्रुएशन लाइक 2 months, 3 months और मे बी 4 months, देन ऑफ कोर्स इट इज आल्सो नॉर्मल at the time of menopause. Okay. And ma'am, what is the like normal days for being the like? Sorry, can you repeat? I'm really sorry about the background noise. My neighbors Yes, are ma'am. going through some. Ma'am, Yes. yes, ma'am. I wanted to ask, ma'am, like, what is the like normal days for like menstrual to be? Is it like for 3 to 4 days or till a week, or if It is it not completely depends abnormal? They are person to more than person. Yes, it completely depends person to person. You are talking about the bleeding phase, I think. So 5 days are yes, the ma'am. normal count days, but yes, of course, 3 to 5 is the normal range, average range. So in some female, it occurs 5 or maybe more than 5. In some female, in 2 to 3 days, it stops.
So it completely depends, but the average is 5 days. So the young females, those who are in their teenagers and in their 20 to 30 years of age, in still 30 years, they experience 4 to 5 days. That is the normal day. Ma'am, can it like change also Yes, it from changes. 5 It to changes with 3 the or age. It changes with the hormonal balance. Plus, आप लोगों का lifestyle कैसा है? And is there any stress or any other workload, physical exertion, or maybe कभी-कभी recently pregnancy के बाद new फिर से menstruation start होता है. तो also it changes because of all other factors. आपकी body में कहीं भी थोड़ी भी problem है, so everything is connected. So ये चीज affect हो सकती है. Ma'am, even Ma'am, I like, have heard that because of sleeping disorders also sometimes it can affect if the sleep we are not having enough sleep. Sleeping disorder अगर आप कह रहे हो, it is completely related to the stress. So stress also affects the menstrual cycle. Everything, all cycle, everything. ma'am saying like it happens, but ma'am, like why, like how the stress it is affecting menstruation? Because okay, so stress की वजह से last I think हमने glands के बारे में पढ़ा था, pituitary gland के बारे में पढ़ा है हमने. Yeah, ma'am. पिट्यूटरी ग्लैंड Yes, क्या ma'am. करता है? इट इज द मास्टर ग्लैंड. तो इसको क्या करना है? बॉडी के डिफरेंट लोकेशन पे सिग्नल्स भेजने हैं. तो वही एक सिग्नल आता है गोनाड्स के पास. इफ यू आर स्ट्रेस्ड, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड प्लस हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, अगर स्ट्रेस्ड हो तो मतलब वहीं से कमांड नहीं आएगा. अगर कमांड नहीं आएगा तो गोनाड्स को फर्दर प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रेट और प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टाइप के हार्मोन्स जो हैं उनका राइट कमांड और राइट कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा. अब इनमें से एक भी अगर कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो वो चेंज होने की वजह से क्या होगा? वो प्रोसेस चेंज हो जाएगा. अब क्यों होगा? अब इधर ध्यान दो. यहाँ पे इधर कॉर्नर पे मैंने आपको 4 फेजेस दिए हैं. तो ये जो पूरा का पूरा फेज है, every phase has different hormone supporting for the activity. जैसे ब्लीडिंग फेज है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. प्रिपरेशन है तो यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि बॉडी प्रिपेयर कर रहा है फॉर द प्रेगनेंसी. तो ओव्यूलेशन के बाद और फॉलिकुलर बनना है तो फॉलिकल बनेगा, ओव्यूलेशन होगा, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन है, प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH. अब इनमें से अगर कोई भी हार्मोन अगर नहीं प्रॉपरली सिक्रीट हो पा रहा, एंड क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हो तो आपकी बॉडी ब्रेन से ही वो कमांड नहीं आ पाया, तो एक भी फेज अगर नहीं काम करेगा तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो जाएगा. मे बी विल बी कंप्लीटली स्टॉप फॉर दैट मंथ, या फिर वो जल्दी भी हो सकता है, जो ड्यूरेशन है वो कम भी हो सकता है. मे बी ये पीरियड मिस हो गया और उसके बाद 10 डेज 15 डेज का जो टाइम था उससे पहले ही हो गया. सो इट ऑल्सो हैपेंस, एनीथिंग कैन हैपन. Okay, ma'am. Okay, so someone asked me PCOD. What is PCOD? तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ इसका. मोस्टली ये सिस्टिक डिसऑर्डर्स है. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम, PCOD या फिर PCOS भी इसको बोलते हैं. What happens in this? इन दिस प्रोसेस जो मैंने लास्ट टाइम बताया, ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रॉपरली ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, और अगर ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा तो फॉलिकल ओवरी के अंदर ही रह जाता है, और ओवरी के अंदर ही रह गया तो उसकी वजह से क्या होगा? वो सिस्ट बन जाता है. सिस्ट यानी छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स. तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो ओवरी के अंदर, दिस इज योर ओवरी, तो इसके अंदर ही रह जाएंगे. और अगर ये हो गए तो ये इनलार्ज होने लगते हैं, और जो दूसरे हेल्दी फॉलिकल्स हैं उनको भी अफेक्ट करने लगते हैं. तो इसकी वजह से उन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है या जो प्रॉपर साइकिल है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है. सो PCOD इज द आल्सो वन ऑफ द कंडीशन जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटी होती है इन फीमेल. इट आल्सो हैपेंस टेम्पररी इन प्यूबर्टी टाइम, बट जो ओबेस्ट हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है उन फीमेल्स में ज्यादातर पाया जाता है. Okay, any other doubt? No, ma'am. Ma'am, like it will affect our health also. That PCOD. Yes, that is also reproduction is what it is part of your healthy body ना. So it is your reproductive health. अगर आपका सही नहीं है, it means आपका overall body का health भी सही नहीं है. So yes, everything. अगर आपका कोई भी organ system affect होता है तो उसकी वजह से दूसरा organ system चेन रिएक्शन चलता ही रहता है, तो दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स भी अफेक्ट हो जाते हैं.
सो इट हैपेंस. प्लस स्ट्रेस ऐसी चीज है, स्ट्रेस्ड हो या फिर आप टेम्पररी डिप्रेस्ड हो, यू आर अंडर प्रेशर, आप फिजिकली बहुत ज्यादा Yeah, ma'am. मेहनत करते हो, एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो अगर ऐसी चीजें हो रही है तो उसकी वजह से आपका 1 by 1 सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो अफेक्ट होने लगते हैं. तो उसी की वजह से आपका बॉडी भी Yeah, ma'am. अफेक्ट होता है. सो इट हैपेंस. Okay, ma'am. Okay, I think that's all. Because like I have like sometimes I panic a lot, so that's why I was asking. Okay, so don't panic. Try to deep breathe. जब भी panic attack आए, try to deep breathe. Everyone, it's for everyone. कभी भी anxious feel हो, nervousness feel हो, try to take deep breath. Try to calm down. 2 मिनट के लिए रुक जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. और हमारे दिमाग में ऐसा Yeah, रहता है कि if we are मतलब अगर हम वो फास्ट काम नहीं करेंगे या फिर फटाफट आंसर नहीं करेंगे तो something bad will happen. No, nothing will happen. So you have to take a pause, 1 या 2 मिनट के लिए, take a deep breath, calm yourself down and then restart. फिर से रीस्टार्ट करो, क्योंकि वो 1-2 मिनट में पैनिक की वजह से क्या होगा, यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग रॉन्ग. इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा लेट काम करो, दैट विल बी बेटर. टेक अ ब्रेक एंड उसको फिर से स्टार्ट करो, दैट विल ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल. Yeah, ma'am. Ma'am, even it happens that while like we are trying to sleep, we overthink a lot if we are Right. having Yeah, ma'am. That's a Ma'am, normal sometimes we are human also in tendency. stress also. We are also in stress. It Right. happens. ma'am, like it always happens with me during exams. Like I'm not able to sleep So some nicely. people are, Same, ma'am. it's completely related to the basic nature. Many of you are overthinkers by default and some of you are completely absent-minded by default. इसका आपके environment से कोई लेना देना नहीं है, आपका basic Yeah. nature है. So if you're overthinking means you are stressing a lot about something, you care about that particular part, इसीलिए आपको बार-बार उसका tension होता है. It's a normal human tendency. Don't think about it too much कि मैं overthink क्यों कर रही हूँ. It's a normal process. When you are trying to sleep, you are going to think, क्योंकि कोई काम नहीं है ना, अब आप Yeah. शांत बैठे हो. So आप शांति Ma'am, के mostly it बैठे हो तो happens. right, it is going to be happen. So आप शांति के साथ हो तो whatever is important या जो भी आप चाहते हो या कोई भी ऐसी चीज, any of the things, तो वो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा and it is going to take over for a while. And it happens. अभी आपकी बॉडी भी चेंज हो रही है, your mind is changing, you are going through schools and lots of environmental changes also. Everything has some kind of impact. तो वो होता है. ये टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होते जाओगे, यू विल हैव लोड्स ऑफ वर्क. अभी इतना काम नहीं है, अभी फ्यूचर में होगा. तो जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, यू आर गोइंग टू थिंक लेस एंड वर्क मोर. अभी यू हैव टू थिंक मोर एंड वर्क लेस. ये आपका पार्ट है. एंजॉय इट. अभी इसको एंजॉय करो. जस्ट गो विद द फ्लो. डोंट पैनिक अबाउट ऑल दोज पार्ट्स की ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे ठीक होगा. डोंट थिंक अबाउट इट. ओके, आई थिंक दैट्स इट. इतने डाउट्स थे. सो नेक्स्ट क्लास में मैं एडोलेसेंस वाला जो चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड का, आई एम गोइंग टू टेक दैट चैप्टर. उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क. प्लस जो आज मुझे क्वेश्चंस पूछने थे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछती हूँ, ऑल द एमसीक्यूज. इन केस किसी और को और भी कोई डाउट है रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स, एंड नाउ आई एम एडिंग वन मोर चैप्टर, दैट इज द रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जो 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है. तो इन तीनों से रिलेटेड अब जो भी डाउट है यू कैन ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. एक होमवर्क सबके लिए जिनके एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं, स्पेशली फिनिश योर एक्सरसाइज. आपकी मॉड्यूल का जो भी एमसीक्यू वाला एक्सरसाइज है, जस्ट फिनिश इट. ओके, आई विल रैंडमली आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछूंगी वो उस एक्सरसाइज में से भी रहेगा. ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर. Bye, ma'am. Bye, ma'am.